Very good morning, everyone. This is Vipin Kumar Gupta. I am the faculty of US Academy and Institute, Gorakhpur. My dear students, once again we are here to discuss about the syllabus of class 9th English Language and Literature, code number 184. My dear students, you know very well CBSE has made a lot of changes in the syllabus. So here we are here to see the revised syllabus because CBSE has deleted a lot of chapters and topics from the syllabus. CBSE has made a lot of changes in the format of the syllabus. So let us see the pattern and the deleted topics and the chapters. You must pay attention very carefully to understand the syllabus because so many chapters and topics have been deleted and a lot of changes have been made in pattern and format also. So let us start our syllabus class 9th English language and literature. Your whole syllabus is of 80 marks and the syllabus has been divided into two parts, part A and part B. Part A contains 40 marks and part B contains 40 marks, means total 80 marks. So let us see first of all part A. Part A, in part A, section you will get a reading section. Reading section you will get two long passages. Okay, reading section you will get two long passages. First is discursive passage and second is factual passage. दोनों long passage होंगे. Okay, and both passages will contain 10 marks each. Okay, first passage will be of 10 marks and second passage will also be 10 marks. और दोनों पैसेज में आपको जो अनसीन पैसेज जो आपको मिलता है जिस पे आपको बेस करके क्वेश्चन लिखने होते हैं, क्वेश्चन विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. इट इज़ वेरी इजी फॉर यू कि क्वेश्चन जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस होंगे. 12 क्वेश्चन पूछेगा और आपको केवल 10 क्वेश्चन के आंसर देने हैं दोनों पैसेज में. तो फर्स्ट पैसेज विल बी ऑफ 10 मार्क्स एंड सेकेंड पैसेज विल बी ऑफ 10 मार्क्स. मीन्स रीडिंग सेक्शन विल बी ऑफ 20 मार्क्स. आई होप इट इज़ क्लियर. पार्ट ए में हम लोग फर्स्ट सेक्शन रीडिंग सेक्शन को क्लियर कर लिए. 20 मार्क्स का होगा. 2 लॉन्ग पैसेजेस पूछे जाएंगे. ओके, सेकंड सेक्शन इन पार्ट ए इज लिटरेचर टेक्स्ट बुक. लिटरेचर टेक्स्ट बुक के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस हुए हैं माय डियर स्टूडेंट. 2 बुक्स आर देयर. वन इज बी हाइव एंड सेकेंड इज मोमेंट्स. ओके, 2 बुक्स आर देयर. Literature section is in part A also and part B also. In both part you will get literature section. But in part A literature section you will get only multiple choice question, extract based question. Like you may see literature textbook question number 3 you may see multiple choice question based on an extract from drama or prose. Okay. प्रोज सेक्शन से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट आई होप यू नो वेरी वेल. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मीन आपके बी हाइव या आपके सेकंड बुक मोमेंट से कोई भी प्रोज सेक्शन से कोई भी चैप्टर से 4 लाइन ले लिए जाएंगे और उस बेस पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. ओके, टू एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे और 2 में से कोई एक आपको करना होगा एंड द क्वेश्चन विल बी ऑफ 5 मार्क्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री. ओके, एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पोइट्री से भी जो भी पोएम आपके बी हाइव बुक में दिए हुए हैं उन पोएम में से कोई भी 4 लाइन 5 लाइन की पोएम ली जाएगी और उस बेस पे कुछ क्वेश्चंस आपके एक नंबर के पूछे जाएंगे. एंड अगेन दिस क्वेश्चन विल कंटेन 5 मार्क्स. मीन लिटरेचर सेक्शन जो पार्ट ए में आपसे पूछे जाएंगे केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड दिस सेक्शन विल बी ऑफ 10 marks. Okay, so 20 marks reading section, 10 marks literature section and 10 marks it is grammar section. Grammar, let us see grammar. Grammar section 10 multiple choice question out of 12 to be answered. Means
12 क्वेश्चन दिए जाएंगे ग्रामर में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 12 में से केवल 10 आपको करना है, 2 छोड़ देना है. इट मीन यू विल गेट ऑप्शन हियर, एवरीवेयर यू विल गेट ऑप्शन. And what are the chapters? First of all, let us see chapters. Tenses, modals, subject verb agreement or subject verb concord, reported speech, and determiners. These 5 topics you have to read in class 9th English grammar. Only these 5 topics. ये आपको केवल 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं ग्रामर सेक्शन में, और इन 5 टॉपिक्स से रिलेटेड 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको एग्जाम में करना है, कंटेनिंग 1 मार्क ईच. ठीक है. एंड 3 टॉपिक्स हैव बीन डिलीटेड बाय सीबीएसई. ग्रामर में 3 और टॉपिक्स, 3 और चैप्टर जो थे पहले अभी तक क्लास 9 के सिलेबस में थे, दिस टाइम इट हैज़ बीन डिलीटेड बाय सीबीएसई. फर्स्ट इज एक्टिव पैसिव वॉइस. एक्टिव पैसिव वॉइस डिलीट कर दिया गया है. नेक्स्ट इज clauses, noun clause, adverb clause, of condition, of time and relative clause. These all clauses have been removed by CBSE. And the third one is preposition. Preposition, which is also a very important topic, but this time it has been removed. ये 3 टॉपिक, पैसिव वॉइस, क्लॉज एंड प्रीपोजिशन, ये 3 टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, आपको नहीं पढ़ने हैं. ओनली दीज 5 टॉपिक्स, टेंसेज, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच एंड डिटरमाइनर्स. These 5 topics you have to read, and 10 marks question will be asked in the examination. Okay, so 10 marks grammar, 10 marks literature, and 20 marks reading section, unseen passage. Means part A is getting over here. part A यहाँ पर over हो रहा है. 40 marks का question part A में आपसे पूछे जाएंगे. I have told you the pattern and format of syllabus. I have told you whatever the topic have been deleted in grammar sections. Now I hope part A is clear. Now let us start part B. part B में फर्स्ट सेक्शन जो होगा वो होगा आपका राइटिंग सेक्शन. राइटिंग सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. राइटिंग अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन ए पर्सन और अ डायरी एंट्री बेस्ड ऑन विजुअल और वर्बल क्लूज. ओके, देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा राइटिंग सेक्शन में, दैट इज अबाउट पैराग्राफ राइटिंग और अ डायरी एंट्री. दो क्वेश्चन दिए जाएंगे पहले में, और दोनों में से कोई एक आपको करना होगा. 1 पैराग्राफ राइटिंग क्वेश्चन एंड 1 क्वेश्चन डायरी एंट्री. दोनों क्वेश्चन दिए होंगे, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा. वर्ड लिमिट इज 100 to 120 वर्ड. माइंड अबाउट वर्ड लिमिट, टेक केयर इट. वर्ड लिमिट यू हैव टू टेक केयर. 5 मार्क्स. ओके, राइटिंग सेक्शन का जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग का या डायरी एंट्री का, दोनों में से एक एक क्वेश्चन देगा, कोई एक करना होगा. वर्ड लिमिट इज 100 to 120 वर्ड एंड इट विल बी ऑफ 5 मार्क्स. राइटिंग सेक्शन सेकंड क्वेश्चन, राइटिंग अ स्टोरी. ओके, वर्ड लिमिट इज 100 to 120 वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन क्यूज. ओके, 1 out of 2 क्वेश्चन. मीन 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको स्टोरी लिखने के लिए. मीन्स एनी स्टोरी विल बी गिवन, ऑफ ओनली 2 लाइन स्टोरी विल बी गिवन एंड यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ स्टोरी. Word limit is 100 to 120 word, and this question will be of 5 marks. Again here CBSE has made some changes. Earlier this story writing question was of 10 marks and word limit is 200 to 250 words. But now it has been revised, it has been changed. Now you have to write a story is only 100 to 120 words and the question will be of 5 marks. कोई 5 मार्क्स का केवल ये क्वेश्चन होगा स्टोरी राइटिंग. सो राइटिंग सेक्शन से जो आपका टोटल क्वेश्चन होगा वो 10 मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स के. डिलीटेड पार्ट. अब देखिए यहाँ पर सीबीएसई ने क्या डिलीट किया, क्या हटा दिया इस बार. लेटर ऑन ए सिचुएशन. अर्लियर इन क्लास 9th लेटर वॉज ऑल्सो इन द सिलेबस, बट दिस टाइम सीबीएसई हैज रिमूव्ड दिस, डिलीटेड दिस, लेटर को हटा दिया गया है. नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन ए प्लेस एंड इवेंट. डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ किसी प्लेस के बारे में या किसी इवेंट के बारे में पहले पूछा जाता था, वो हटा दिया गया है. यू कैन सी हियर क्वेश्चन, राइटिंग अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन ए पर्सन. अब किसी पर्सन के बारे में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आपको देगा. डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन ए प्लेस और इवेंट को रिमूव कर दिया गया है. तो दिस 2 पार्ट हैज़ बीन रिमूव, लेटर ऑन ए सिचुएशन एंड डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन ए प्लेस और इवेंट, इसको डिलीट कर दिया गया है. ओके माय डियर स्टूडेंट, पार्ट बी में फर्स्ट सेक्शन राइटिंग सेक्शन 10 मार्क्स, इट इज क्लियर नाउ पार्ट बी का सेकंड पार्ट देखते हैं, लिटरेचर पार्ट.
ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि लिटरेचर पार्ट आपको पार्ट ए में भी मिलेगा, पार्ट बी में भी मिलेगा, लेकिन पार्ट ए में केवल एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस पे पूछा जाता था। लेकिन पार्ट बी में आपको लिटरेचर सेक्शन से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर आपको पूछे जाएंगे इसमें। तो लेट अस सी दिस लिटरेचर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन, 4 आउट ऑफ 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वर्ड लिमिट इज 20 to 30 वर्ड्स। ओके, 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें 6 में से केवल 4 आपको करने हैं, 3 फ्रॉम बी हाइव और 3 फ्रॉम मोमेंट्स, मतलब 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 6 में से केवल आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। वर्ड लिमिट इज 20 to 30 वर्ड्स, 2 मार्क्स ईच। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, केवल 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, 6 क्वेश्चन दिए होंगे। ओके, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन लिटरेचर में देखते हैं, 4 आउट ऑफ 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स। अगेन टेक केयर ऑफ वर्ड लिमिट, दिस इज ऑल्सो अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बट वर्ड लिमिट इज 40 to 50 वर्ड्स। इसके पहले का जो क्वेश्चन था वो भी शॉर्ट क्वेश्चन था बट वर्ड लिमिट वाज 20 to 30 वर्ड, इसलिए वो 2 मार्क्स का एक था। और ये क्वेश्चन वर्ड लिमिट इज 40 to 50 मार्क्स एंड ये 40 to 50 वर्ड्स लिमिट है और ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इसमें भी 6 क्वेश्चन दिए होंगे, बी हाइव से 3 और मोमेंट से 3, टोटल 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 6 में से केवल 4 आपको करने हैं। अगेन यू आर गेटिंग ऑप्शन हियर। सो शॉर्ट आंसर्स आर क्लियर। नाउ लॉन्ग आंसर, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम बी हाइव। बी हाइव जो बुक है उससे 2 लॉन्ग आंसर दिए जाएंगे, 2 में से कोई एक लॉन्ग आंसर आपको करने हैं। वर्ड लिमिट इज 100 to 120 वर्ड एंड दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 5 मार्क्स। ओके, 1 लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम बी हाइव। बी हाइव जो बुक है उसमें से कोई 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 में से कोई एक आपको करना होगा। सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सिलेबस इज 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम मोमेंट्स। जो सेकंड बुक मोमेंट्स है उससे भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको करना होगा। अगेन वर्ड लिमिट इज 100 to 120 वर्ड्स एंड द क्वेश्चन विल बी ऑफ 5 मार्क्स। मीन्स टोटल लिटरेचर सेक्शन इज ऑफ 30 मार्क्स एंड 10 मार्क्स राइटिंग सेक्शन। मीन्स पार्ट बी ऑल्सो कंटेन 40 मार्क्स। सो पार्ट ए वी हैव सीन 40 मार्क्स एंड पार्ट बी 40 मार्क्स, मीन टोटल 80 मार्क्स का सिलेबस आपका होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, वी हैव सीन ऑल द पैटर्न चेंजेस, फॉर्मेट चेंजेस वी हैव सीन। ओके, एंड राइटिंग पार्ट एंड ग्रामर पार्ट में जो भी टॉपिक्स और चैप्टर डिलीट किए गए, ग्रामर में डिलीट किए गए टॉपिक्स, राइटिंग सेक्शन में डिलीट किए गए टॉपिक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि लिटरेचर की जो आपकी बुक है बी हाइव और मोमेंट्स, उससे भी कुछ चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं, यहाँ पर देख लेते हैं और उसको आप लोग अपने बुक में टिक जरूर कर लेंगे, उसको क्रॉस कर लीजिएगा। उन चैप्टर्स को आपको नहीं पढ़ना है। जैसे बी हाइव में देखते हैं 5 चैप्टर्स को डिलीट किए गए हैं, उसको आप लोग टिक कर लीजिए, आपको आप बुक में नहीं पढ़ना है उसको। फर्स्ट वन इज द लेक आइजल्स ऑफ इनिस्फ्री, दिस इज अ पोयम है। बी हाइव में सबसे आपको पहला जो चैप्टर जो डिलीट किया गया है दैट इज द लेक आइजल्स ऑफ इनिस्फ्री, दिस इज अ पोयम, इसको डिलीट कर दिया गया है। सेकंड इज द स्नेक एंड द मिरर, दिस इज अ प्रोज स्टोरी, द स्नेक एंड द मिरर, इसको भी डिलीट कर दिया गया है। द डक एंड द कंगारू, दिस इज अ पोयम, इसको भी डिलीट कर दिया गया है। फोर्थ चैप्टर इज काठमांडू, ये जो चैप्टर है ये प्रोज है, स्टोरी है, इसको भी डिलीट कर दिया गया है। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट वन, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, दिस इज ऑल्सो पोयम and this chapter also has been deleted. So 5 chapters have been deleted from your Beehive book and you must keep in your mind, you must cross it in your book. बुक में आप क्रॉस कर लेंगे इसको, ये 5 चैप्टर्स आपके सिलेबस से हटा दिया गया, इसे नहीं पढ़ना है। नाउ इन मोमेंट जो आपकी सेकंड बुक है मोमेंट्स, इससे भी 2 चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है। वन इज ईश्वर एंड द स्टोरी टेलर, इट इज अ स्टोरी, इसको डिलीट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। एंड द सेकंड इज द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ओके, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, इस चैप्टर को भी डिलीट कर दिया गया। सो बी हाइव से 5 चैप्टर्स को और मोमेंट से 2 चैप्टर्स को लिटरेचर के डिलीट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, ये आपको नहीं पढ़ना है। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप you have got all the changes, whatever the syllabus
topic chapter has been deleted by CBSE. I hope you have got it well, you have kept in your mind. And in the last you may see here the whole format of the syllabus. I have told you reading comprehension 20 marks, writing comprehension and grammar is 20 marks, and literature this has been increased this time 40 marks. Total it will be of 80 marks. Your 2020-21 session syllabus 80 marks, English language and literature code number 184. So I hope my dear student you have got it well, the syllabus, the pattern and format, and the most important thing you have come to know in this video about the deleted topics and chapter. So my dear students, again we will meet in the next video. Thank you.